Okay, please. Sir, I will just finish. Your time is Sir, over. he What should is not it? have No, disturbed no. me. This He is has no business to unfair. disturb No, me. no, no. He should Everybody not spoke disturb 2 me. minutes. Why do you take I more will time? speak. Sir, the point is simply this. We should... No, No, so but- if he is going to but- carry on, but- then I am standing here. I am not going to sit down. Sit down. No, बाद में Okay. लेना. No, please. नरेश जी, That is the problem. Sit नरेश down. जी, No. राज्यसभा के ऊपर आपका हक नहीं है. आपका Please, हक नहीं है. Please. No, I ना want to- मिश्रा जी का है, मेरा भी हक है. Please. I will नरेश ask जी, you. आपको मेरे को सुनना No, पड़ेगा. So many please. No, please. Please, please, please. जो मर्जी please. करें. No, please. Keep quiet, please. क्या कह रहे Keep हो quiet. So, see, this subject is very important. So, I have a number of names. With me now there are half a dozen names and other friends are raising the hands. There is only 10 minutes. So, I think we will now stop here and call the minister to... No, I have my here. No. Yes, I have half a dozen name here. Minister to reply. Minister to reply. It's not possible. Minister to reply. Respected Chairman, sir. I already hear 6 names. आपने कहा है मेरा तो नाम बोला है आपने ऐसा नहीं हो Yes. Before that I got the names. So guys, all right, decide, okay. All right. Now, that means we will sit 15 minutes extra. You agree? Now, VP Singh ji, Bhaiti. No, it is not. Why you want to say? Everybody knows of you. रहा है Why, please? पूरे सदन का जो भाव रहा है कि रीजनल लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस मिले No, I have not called you. I asked you to sit down. Mr. Minister, please. Mr. सर व्हाई No, you can. You sit down. Let the minister reply. Respected Chairman, sir. हम सारी भाषा में बोल देंगे सब बोले I have 1 dozen names. थोड़ा सा लंच 1 dozen names. That is the problem. चलिए 1 dozen names here. एक सालों में क्या हो गया पहले दिया है नाम ये. मैं क्या करूं? ओके आई एम स्पीकिंग हम बोलने लगे Sit down. What can I do? I cannot accommodate all. I am telling you. I cannot accommodate all. आदरणीय सभापति महोदय मंत्री बोलिए. देखिए इतनी जो तेजना है मंत्री, तो उसी के विषय में बोल रहे हैं बोलिए. आदरणीय सभापति महोदय and respected Chairman, sir, I had the privilege of making a statement in this August House on the 18th of July, and I stand before you today for a clarification following this discussion. मैंने बड़े ध्यान से ये सारी बातें सुनी, हिंदी में भी बोलूँगा, अंग्रेजी में बोलूँगा, यदि आप आदेश करेंगे तमिल में भी बोलूँगा, डोगरी में भी बोलूँगा, पंजाबी में भी बोलूँगा, उर्दू में भी बोलूँगा और कानी मोदी जी तमिल में भी बोलूँगा, परंतु कहने का अर्थ ये है, this is House of Elders. I am here to learn from you and to obey you. और अच्छा लगा, बहुत सी बातें ध्यान में आ गई, आपने याद दिलाया तो याद आया, बेरोजगार में हो गया, क्योंकि पहले डॉक्टरी करा करता था, अब यहाँ से बेरोजगार करेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, तो कृपा करके थोड़ा समय दे करके इतनी उदारता दिखाइएगा हम पर कि ये भी काम ना छोड़ जाए तो फिर कहाँ जाएंगे, फिर उन्हीं बच्चों की तरह बैठना पड़ेगा. So, Chairman sir, at the outset I just have to say that the government is absolutely aware of what is happening. ऐसा नहीं है कि सरकार को चिंता नहीं है,
संवेदनशीलता भी है, सहानुभूति भी है, एंड वी आर लुकिंग एट इट विद ऑल दी सिंपैथी, ऑल दी सीरियसनेस, ऑल दी सेंसिटिविटी एट आवर कमांड। जो कुछ यहाँ पर बातें आई हैं, मेरे ख्याल से उसमें बहुत अधिक विवाद भी नहीं है, लगभग सहमति है। कुछ एक, चूंकि अब मुझे ये दायित्व दिया गया है यहाँ खड़े रहे होकर के आपको संबोधित करने का, और पिछले 4 सप्ताह से जब से ये आंदोलन चल रहा है तो दिन रात इन बच्चों के साथ बैठना भी है, संपर्क भी है, थोड़ा शोध भी करना पड़ा, स्वयं भी अध्ययन करना पड़ा कि ये विषय क्या है। कुछ एक बातें हैं जो बीच में छूट रही हैं। हुआ ये था कि 2010 ईस्वी तक एक अलग पैटर्न चला करता था। मैं थोड़ा समय लूंगा, इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं है। एक प्रीलिमिनरी इम्तहान होता था परीक्षा और दूसरा मेन, एंड इन द प्रीलिमिनरी एग्जाम वी हैड 2 पेपर्स, one of 150, the other one of 350, और जो दूसरा था उसमें लगभग 2250 अंकों का इम्तहान होता था, जिसे आप मेन परीक्षा कहते थे। फिर कहीं ये सोचा समझा गया कि ये जो प्रीलिमिनरी परीक्षा है इसको थोड़ा सा सरल बनाया जाए, इट कुड बी मेड लिटिल मोर सिंप्लीफाइड इन अदर वर्ड्स। तो इसके 2 जो पेपर थे, दोनों परीक्षा पत्र 200 अंकों के कर दिए गए, और जो मेन परीक्षा थी उसके 9 पेपर हैं। कुल मिलाकर के अंकों की संख्या है 2050। निवार्केकर समिति का उल्लेख किया जा रहा था। अनेकों समितियां हैं, मैंने सारा अध्ययन किया, कोठारी समिति से लेकर निवार्कर तक, अलग तक। उसके आधार पर क्या हुआ वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। अब ये जो मेन परीक्षा है उसमें जो 2 पहले पेपर होते हैं वो क्वालिफाइंग पेपर कहे जाते हैं। 30, 35, 40% उसमें क्वालिफाइंग होता है, उसमें एक ज़रूर अंग्रेज़ी का भी होता है, और दूसरा जो पेपर है वो किसी या हिंदी या किसी भाषा में, ऑप्शनल भाषा में उसको आप कैंडिडेट को करने का एक स्वतंत्रता रहती है। जो ये प्रीलिमिनरी परीक्षा है, इसके 2 पेपरों में से जो दूसरा पेपर है 200 अंक का, उसमें 2010 तक तो वैसे ही चल रहा था। 2010 के लगभग एक सुझाव आया, एक अलग कमेटी बनी, अलग उसका नाम था समिति, और उसके सुझावों के आधार पर उस समय ये समझा गया, मैं नहीं था समझने वाला, ना हम में से कोई था, और ये निष्कर्ष निकाला गया कि 22 अंकों का एक प्रश्न होना चाहिए उसमें, एक प्रेसी टाइप, जो कहा गया कि ये 10वीं कक्षा के स्टैंडर्ड का होता है। एंड इन ऑर्डर टू मेक इट लैंग्वेज न्यूट्रल एज दे थॉट एट दैट टाइम, इसमें लिखना कुछ नहीं है कैंडिडेट को, ऑब्जेक्टिव टाइप है, प्रेसी दे दी गई। द चेयरमैन सर इज सिटिंग हियर, ही इज नाउ ऑर्डरिंग दिस, और फिर नीचे some objective questions, which of the following is true. You just have to mark it so that you don't even have to write it. It is more of English comprehension rather than English expression or English essay. And the reason given then by those who thought it was so, I'm not subscribing to any of these views. I'm just putting forward an impartial view because I'm myself a medical practitioner, so I'm taking into cognizance that all the elder members have said. They thought this was essential to have certain basic working knowledge of English. Rightly or wrongly, that was their understanding of the issue. अब ये हो गया तो 2011 से ये पद्धति आरंभ हो गई। 2011 भी बीता, अब क्यों नहीं किसी ने उस समय इसका विरोध किया, या हुआ तो प्रभावी विरोध नहीं हुआ, या आंदोलन नहीं हुआ जिस प्रकार का आज हो रहा है। ओके, no, I don't want, I'm not accusing anybody, I'm not here. I said I'm here to learn because I'm already researching this subject, so I'm going back with very worthy inputs, both about the subject as well about myself, about the 3 digits and all those things. So I'm glad that I'm not one of those whose number of bytes go into 3 digits. Anyway, coming back to the subject, I'm just trying to put the record straight, and we'll go we'll take absolute cognizance of the wishes of the House. कोई विरोध नहीं हुआ, कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई उपद्रव नहीं हुआ। ये फिर विषय आया कैसे ध्यान में? विषय इसलिए आया कि एक PIL दायर की गई, दीनानाथ बत्रा एंड अदर्स,
2012 में। और यदि ये PIL दायर ना होती तो शायद तब भी तत्कालीन सरकार इसका संज्ञान ना लेती। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बिटवीन द लाइन्स, इट इज फॉर ऑल द वर्दी मेंबर्स टू draw their conclusions. In 2011, the cognizance of this issue was taken only after there was a High Court judgment following a PIL by Batra and others. और उस उच्च न्यायालय के निर्देश के अंतर्गत 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, क्योंकि उस न्यायालय ने के निर्देश में इस PIL ने यही विषय उठाए, यही बिंदु उठाए जो आज आदरणीय सदस्य उठा रहे हैं। उस निर्देश के अंतर्गत सरकार ने एक 3 सदस्यीय समिति गठित की। उसके 3 सदस्यों के नाम थे अरविंद वर्मा, RK गुप्ता, PK दास। ये उस सरकार ने की और वो तिथि थी 12 मार्च 2014। अदालत उच्च न्यायालय की भावना का संज्ञान लेते हुए चेयरमैन साहब बैठिए, तो ये समझ लीजिए कि आंकड़ों सहित जिस तरह से भारतीय भाषाओं के बच्चों का यहाँ तक हाल हो गया कि जो अंग्रेजी वाले बच्चे उनको दुगने हो गए, और वो इनके ज़माने शुरू हुआ और आपके ज़माने में भी कंटिन्यू हो रहा है। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि इतने विस्तार से ये सब हमको जानकारी, इतने विस्तार से ना जाकर ये जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड इशू हो गया, इस पर जल्दी आ जाइए। मैं उसी पर आ रहा हूँ। The idea of putting the विस्तार जरूरी है। Now Vijay Goyal, please. Minister is replying, मैं please. आपसे एक You don't reply. I accept your advice. I am coming to that. कहने का तात्पर्य केवल ये था कि 1 मास का अंतराल दिया गया था इस कमेटी को, 1 मास का। The committee was expected and was asked by the then government to submit its report within 1 month, which it did not give, and the committee was given an extension of 3 months, by which time incidentally there was a change of the government. अब हम आ गए, हमारे हिस्से ये विषय भी आ गया, बेरोजगारी भी आ गई, सरकार भी आ गई, इसे छुड़वाइएगा नहीं, आपकी कृपा से मिल गया, और अब ये आंदोलन भी आ गया। अब हुआ ये, आई एम पुटिंग इट वेरी स्ट्रेट एंड आई लुक फॉरवर्ड टू योर। अब क्या है कि हमारे पास कोई, देयर वाज नो अदर ऑप्शन नाउ लेफ्ट टू अस, सो व्हाट टू डू नाउ? ऑल दैट वी कुड डू इज, ये समिति कहने लगी कि साहब हमारे जो 3 महीने थे वो तो समाप्त, हमने इनसे कहा भैया रिपोर्ट दो, बोले हमारे तो 3 महीने समाप्त हो गए, या तो हमें एक्सटेंशन दो या हम रिपोर्ट नहीं दे सकते। अब you see the kind of fix in which we were caught, which we were totally, unaware of or not actually prepared for it. अब क्या हुआ कि हमने इस समिति को कहा कि हम आपको एक्सटेंशन देते हैं, परंतु आप तुरंत इसकी आप रिपोर्ट हमें दीजिए, because we couldn't have straight away gone and demolished that committee or suspend. हाँ सुनिए ना, हाँ मैं बताता हूँ। टाइम बाउंड हमने, क्योंकि एक्सटेंशन के लिए तो वो समय दे दिया, परंतु अब उसके बाद जब ये आंदोलन तीव्र गति पकड़ने लगा तो एक लिखित रूप में उनको एक पत्र लिखा गया और उन्हें कहा गया कि आप एट द अर्लीस्ट ये रिपोर्ट भेजिए ऑन द अर्जेंट बेसिस। आप बात सुनिए, देखिए अब अभी हम आज फिर उस समिति को हमने ये कहा है कि आप 1 सप्ताह के अंदर आप हमें इस रिपोर्ट को उपलब्ध करें। अब सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। अब ये रिपोर्ट किस प्रकार की आएगी उसके आधार पर अगली रूपरेखा भी तय हो सकती है। मेरी आप न्यायालय भी जा सकते हैं। हाँ, जाएंगे, ठीक है। मैं आप माननीय जी मुझे केवल 2 मिनट दीजिए, उस पर मेरी सारी मेरे ऊपर आ जाएगी। Let him मुझे सिर्फ reply. 2 मिनट अब सभापति Yeah. ये सारा क्लियर। Please listen to the reply. You just required 2 Please minutes. listen to the reply. I am coming to Don't what the inter- honorable members is saying. Yes. Sir, I am No. Please listen to the reply. अब हमने उनसे कहा है कि सप्ताह भर में हमें आप रिपोर्ट दीजिए। अब रिपोर्ट कैसी होगी उसके आधार पर हम उसका संज्ञान लेकर के यदि ऐसा लगा
कि उसमें फिर भी कुछ ऐसी क्लैरिफिकेशंस की आवश्यकता है तो वी कैन इवन देन डेलिब्रेट ऑन दैट रिपोर्ट। अब दूसरी बात, अब ये आ गया विषय एडमिट कार्ड का। चिंता तो है, हुआ क्या है कि कल विद्यार्थियों को, पहले ये अनशन पर बैठे थे कुछ एक विद्यार्थी, बड़े कठोर प्रयास के साथ इनसे वो अनशन तोड़वाया गया आज से कोई 4 दिन पहले, और सभी सदस्यों की सभी वर्गों से। जी Now please. सर मंत्री जी को बोलने दिया जाए। नहीं मैं No, he has yielded. What can I do? Don't take cognizance. He has yielded. I don't yield, let me हाँ, finish. if he has मैंने yielded, what बहलाया can I do? फुसलाया नहीं, हमने जज्बात निभाए हैं असूलों की जगह। 3 रात हम वहां बैठे और जब उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा तो मैंने उन बच्चों को कहा, बेटा आप तोड़ो कि ना तोड़ो, हमारा अनशन हो गया। We have taken it very sincerely because I myself been a teacher for almost 25-30 years. Now please, let him reply, please. चलिए अब ये No, please allow him to reply. Don't interfere So, Chairman and sir, intervene. Chairman sir, then what happened now is that yesterday's instigation came from this admit card. हम आपके माध्यम से उन विद्यार्थियों को भी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं और समझाया भी that the two issues need not be correlated. एडमिट कार्ड इशू हुआ है वो यूपीएससी का एक कैलेंडर है उसके अंतर्गत हुआ, जिस प्रकार से कि एडवर्टीजमेंट इशू की जाती है, परीक्षा की तिथि निश्चित की जाती है, एडमिट कार्ड की तिथि निश्चित की जाती है। दिस इशूइंग ऑफ एडमिट कार्ड विच हैपेंड यस्टरडे इज नॉट इन एनी वे गोइंग टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन दैट इज टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। That's very clear. Yeah. अब इसके बाद That's अब clear. मेरी बात सुन लीजिए। Now let him complete. मैंने नहीं इशू किया, मिश्रा फिर जी। गलत हो रहा है। No, I want to put the मिश्रा जी। I want to put the मंत्री को समाप्त करने दो। Chairman sir, the card has not been issued by us. It has been issued by UPSC, which is a separate body which follows a calendar. The date of 24th August has been carrying on for years together. That was not decided by the present government. Anyway, coming back to the point. So that issue of admit card, all that I can assure you, sir, is not going to influence the further course of action. अब जैसे कि कमेटी की बात आई है और जैसे स्टूडेंट्स का है, ऐसा भी नहीं है कि वी आर नॉट इन पर्सनली इन टच, हम उनके साथ हैं और बल्कि मैं तो सभी वर्गों के, सभी पार्टियों के सदस्यों को लेकर के भी उनके साथ संपर्क बनाए रखे हैं। आई वुड रादर नाउ अपील टू यू एंड और ये जो 2013-14 की मैंने ये बात इसलिए की थी कि ये कुछ एक ऐसे इसमें विषय हैं, ऐसा भी ना लगे कि ये विषय, ये जो समस्या है ये हमारा क्रिएशन है, परंतु जिसका भी है समाधान करना तो हमारी जिम्मेवारी है। हाँ, बिल्कुल नहीं करेंगे। और सब मिलकर के मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा सभापति जी के माध्यम से कि हम इन बच्चों से ये अपील करें कि वो अनावश्यक अपने आप को किसी शारीरिक मानसिक क्लेश में ना डालें। हमें उनसे सहानुभूति है। वी आर लुकिंग एट देयर प्रॉब्लम विद ऑल द सीरियसनेस ऑफ इट। Why you interrupt? He is very clear. डॉक्टर हम शॉर्ट कर खत्म करो। He is. Let him. परीक्षा की तिथि सुनिए, आप लोग सुनिए, मैं एक बात कह, चेयरमैन सर आप लोग सुनिए। चेयरमैन No, you listen. Chairman, सुनिए sir. पहले। आप सुनते नहीं है, फिर क्या करूं? सभापति जी सुनिए। सभापति जी अरे आप लोग बैठिए, सुनिए, सभापति सुनिए, आप लोग सुनिए। I'll be forced to adjourn the house. That's the only way. I'll be forced to adjourn the house. Yeah. सभापति मंत्री खत्म करो। सभापति जी मैं 2 वाक्य कह करके बात समाप्त करूंगा बिकॉज देयर इज नो पॉइंट बीइंग रेपिटेटिव। मैंने ये कहा कि ये जो परीक्षा की तिथि है 24 अगस्त है। अब किसको पोस्टपोन करना है? अरे अभी मैंने जब आपको आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के भीतर हम इसका संज्ञान लेकर के एक निर्णय करेंगे और आगे की रूपरेखा उसके आधार पर होगी। और दूसरी बात, लेट मी अश्योर यू सर, आई माइसेल्फ एम नॉट इन फेवर ऑफ, नीदर द गवर्नमेंट इज इन फेवर ऑफ any injustice happening to any group of students on the basis of language, के भाषा के आधार पर किसी भी विद्यार्थी वर्ग से कोई पक्षपात हो, अन्याय हो, सरकार इसका कदापि इस पर समर्थन नहीं करती। एंड वी डोंट विश टू लिंक लैंग्वेज विद स्किल। धन्यवाद सर।
House is adjourned to meet at 2:30 p.m. 2:30 p.m. adjourned to meet.